فیصلہ کیا ہے کہ جنوبی پنجاب کو ایک صوبے کی شکل دینے کے لیے اسمبلی میں ایک بل پیش کیا جائے گا اور اس پر دیگر سیاسی جماعتوں سے بھی مشاورت کی جائے گی اور ان کی بھی تائید حاصل کی جائے گی، کیونکہ وہ بھی گاہے بگاہے اس کے بارے میں اپنی آراء سے ہمیں مستفید کرتی رہی ہیں اور سمجھتی رہی ہیں کہ جنوبی پنجاب محرومیوں کا علاقہ ہے اور اس کی محرومی کو ختم ہونا چاہیے۔ ہمیں یہ سن کر بھی بے حد خوشی ہوئی کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے وہاں برملا کہا کہ پنجاب کے اس وقت کا جو بجٹ بنے گا، ہم آبادی کے تناسب کو سامنے رکھتے ہوئے 35% فنڈز جو ہیں وہ مختص کریں گے جنوبی پنجاب کے لیے اور اسے پھر ری اپروپریٹ نہیں ہونے دیا جائے گا۔ ماضی میں پچھلے ادوار میں فنڈز ایلوکیٹ کر دیے جاتے تھے، بجٹ میں ایک انٹری ہو جاتی تھی، لیکن دوران سال وہ فنڈز جو ہیں وہ ری اپروپریٹ کر دیے جاتے تھے اور کہتے ہیں نا ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور چبانے کے اور در حقیقت جب فنڈز کی ایکچوئل یوٹیلائزیشن کا وقت آتا تھا تو جنوبی پنجاب کو جو وعدہ کیا جاتا تھا وہ ایفا نہیں ہوتا تھا۔ اب انہوں نے ایک اس طرح اس کو رنگ فینس پروٹیکشن دے دی ہے کہ کوئی اس کو ری اپروپریٹ نہیں کر سکے گا۔ یہ جنوبی پنجاب کی عوام کے لیے دوسری خوش خبری ہے۔ یہ بھی فیصلہ ہوا کہ ہم نے، کیونکہ اس پولیٹیکل کنسنسس کے لیے اور بل کو حتمی شکل اور اس کے لیے آئینی ترمیم درکار ہے، 2/3 میجورٹی درکار ہے، اس پہ کنسنسس بلڈنگ میں کچھ وقت لگے گا، لیکن کیونکہ لوگوں کا ایک درینہ مطالبہ ہے اور اس پہ مزید تاخیر نہیں کی جا سکتی، تو فیصلہ ہوا فی الفور کہ جنوبی پنجاب کے لوگوں کو ڈیولوشن آف پاور کے کانسیپٹ کو سامنے رکھتے ہوئے اور ان کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے کہ ان کے مسائل ان کی دہلیز کے قریب حل ہوں، سیکریٹریٹ کا فیصلہ ہوا ہے۔ آج ایک فیصلہ ہوا ہے کہ انشاءاللہ اپریل کے مہینے میں، یعنی کہ اگلے ماہ، ایک ایڈیشنل چیف سیکرٹری ساؤتھ کا تعینات کر دیا جائے گا اور ایک ایڈیشنل آئی جی پی ساؤتھ تعینات کر دیا جائے گا۔ ان میں سے ایک صاحب بہاولپور میں اپنا آفس اسٹیبلش کر لیں گے اور دوسرے صاحب ملتان میں اپنا آفس اسٹیبلش کر لیں گے، کیونکہ انفراسٹرکچر اور ان ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے، کیونکہ جب ایک مکمل سیکریٹریٹ بننے میں تو بھی وقت لگے گا، نئے آفسز، نئی تعیناتیاں، نئی چیزیں، وقت لگے گا۔ اس کے لیے ایک فائنینشیل ایکسرسائز، فائنینشیل امپلیکیشنز کی ایکسرسائز بھی مکمل ہو گئی ہے اور چیف سیکرٹری پنجاب نے سلائیڈز کے ذریعے بتایا کہ اس سیکریٹریٹ کے لیے مکمل کتنا پیسہ درکار ہوگا جب آپ نے بنانا ہے، اور ایڈیشنل جو آپ نے پوسٹ کریٹ کرنی ہے وہ کتنی ہوں گی۔ کوئی مکمل سیکریٹریٹ کے لیے کوئی 3.5 ارب روپے درکار ہوں گے اور کوئی ایڈیشنل پوسٹ جو ریکوائرڈ ہوں گی وہ 3500 کے لگ بھگ ہوں گی۔ جی 1350 ایڈیشنل پوسٹ درکار ہوں گی اور 3.5 ارب روپیہ اس کے لیے درکار ہوگا۔ تو یہ ایک بہت ایک خوش آئند ڈیولپمنٹ ہے جس کو آج وزیر اعظم کی سربراہی میں ایک حتمی شکل دی گئی ہے۔ جنوبی پنجاب کے لوگوں کو، میں یہاں تشریف فرما ہے مداری صاحب، ان کے والد بزرگوار سابق وزیر اعظم میر بلخ شیخ مزاری صاحب، انہوں نے بھی اس پہ بہت ایک آواز بلند کی۔ ان کا کردار اور ان کی کاوشیں کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ میں آپ کی وسادت سے ان کو بھی مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا اور ان دیگر حضرات کو جنہوں نے جنوبی پنجاب کو
अमली जामा पहनाने के लिए तहरीक इंसाफ में शमूलियत अख्तियार की और हमारे बाजू बने, हमारी ताकत में उन्होंने इजाफा किया और उनकी शमूलियत से तहरीक इंसाफ में जनूबी पंजाब को एक अमली शक्ल जो मिल रही है, आज वो एक तारीख़ी दिन है, आज एक तारीख़ी दिन है। और मैं जनूबी पंजाब की आवाम को, उन मुंतखब नुमाइंदगान को जिन्होंने काविश की, और आवाम को जो इतने अरसे से उन्होंने तवील इंतज़ार किया, मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। और ख़ास तौर पर मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा वज़ीर आज़म पाकिस्तान और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जिन्होंने इस चीज़ को बरमला कहा कि मैंने डेटा का मुताला किया है। और जब मैंने डेटा का मुताला किया तो उसमें मैंने देखा कि ये जो सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये न सिर्फ बैकवर्ड हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से, बल्कि उनकी जो पॉवर्टी का लेवल है वो निस्बतन, गुर्बत का जो लेवल है वो निस्बतन ज़्यादा है। तो वो पॉवर्टी एलिविएशन का जो हमारा तहरीक इंसाफ का ऑब्जेक्टिव है और जो एहसास प्रोग्राम हमने कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम बनाया है, उसको भी हम जो अमली जामा देना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी मैं समझता हूँ कि ये वो इलाका है जिस पर तवज्जो देनी चाहिए थी, जो माजी में नहीं दी गई। तो आज ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है, एक तारीख़ी फ़ैसला है। इस तारीख़ी फ़ैसले पर हम सब मुंतखब मेंबरान वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का शुक्रिया अदा करते हैं। और इंशाअल्लाह उन्होंने जुमेरात के रोज़ एक पार्लिमानी इजलास भी बुलाया है और दीगर मेंबरान असेंबली जो उसमें शामिल होंगे और उन्हें भी वो इस सिलसिले में एतमाद मिलेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, तारीख़ी डेवलपमेंट है। और हम ये भी समझते हैं कि इस डेवलपमेंट से, हमारी राय है, हमारी दयानतदाराना राय है कि इस डेवलपमेंट से वफाक पाकिस्तान मजबूत होगा और वो जो इम्बैलेंस था, वो इम्बैलेंस जो डिस्टॉर्शन थी, वो भी ख़त्म होगी। शुक्रिया। सवाल लें। आज एक ऐसा सानिया सुबह रूनुमा हुआ, पाकिस्तान एयरफोर्स का जो तैयारा गिरा, हम सब की तरफ से, आपकी तरफ से हम उन शोहदा के ख़ानदानों से इज़हार तज़ियत करते हैं और इस अफसोसनाक वाक़े पे ना सिर्फ अफसोस का इज़हार करते हैं बल्कि उन शोहदा की दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ भी करते हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 100 दिन में सूबे का ऐलान किया था। सेक्रेटेरिएट का ऐलान पहले नून लीग ने भी किया, लेकिन जनूबी पंजाब ने उसे रिजेक्ट कर दिया और नून लीग का नहीं। देखिए आप सवाल करें, कमेंट्री ना करें, कमेंट सवाल करें। अच्छा, उसके बाद नून लीग का वहाँ से सफाया हो गया। एनएफसी अवार्ड में जनूबी पंजाब का 530 अरब रुपए बनता है सालाना। क्या जनूबी पंजाब को सेक्रेटेरिएट बनने के बाद एनएफसी से भी हिस्सा दिया जाएगा? देखिए ये बड़ा आपका मुनासिब सवाल है और मैं इसको जवाब देता हूँ। जब एक सूबा इंशाल्लाह बनेगा, जनूबी पंजाब जी एक सूबा बनेगा, तो उस सूबे की वो तमाम लवाजमात जो हैं, जो कि बाकी फेडरेटेड यूनिट्स की हैं, वो उसको भी हासिल होंगी। एनएफसी में वो अपना हिस्सा उसको मिलेगा, ऑब्वियसली उसकी एलोकेशन होगी, और वफाक में उसको नुमाइंदगी मिलेगी। सेनेट में जो और एक फेडरेटिंग यूनिट का जो एक मकाम है, उसका भी एक मकाम होगा। तो ये तो ऑटोमेटिक चीज़ें हैं जो गिवन हैं और इंशाअल्लाह डेवलपमेंट में भी उनको वो रुकूम मिलेंगी जो दरकार है। ये बताएं कि जिस तरह आपने अभी जनूबी पंजाब सूबे की एक नवीन पेशरफ के बारे में ऐलान किया है, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में इशारे बनाए में जनूबी पंजाब पे चीनी का बहरान पैदा करने का इल्जाम आयद किया जा रहा है। एक तो ये बताएं कि उस चीनी माफिया को आप कब ठिकाने लगाएंगे, और इसके साथ पहली बात देखिए, सूबे के बारे में सवाल है। देखिए पहले देखिए आप मुझे अफसोस की बात है कि आज इतने बड़े, आप जरूर करें ये, आप देखिए सवाल आपका हक है और हम उस हक को तस्लीम करें। आज देखिए खुदा के लिए आप एक अर्ज तो सुन लेना, आप इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ये एक इतनी बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, ये इतनी बड़ी हुई पाकिस्तान की फेडरेशन की डेवलपमेंट है, आप उसकी अहमियत को सामने रखते हुए बात कीजिए ना मेरे भाई। ये बता दें कि
तमाम की तमाम जमातें पार्लियामेंट में नए सूबे के क़याम की हिमायत कर रही हैं। इसको गुज़िश्ता 13 साल हो गए। रुकावट क्या है आईनी तरमीम की मंजूरी में? सर गुजारिश ये है, रुकावट जो थी वो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि किसी जमात के पास 2/3 मेजॉरिटी ना थी। अगर 2/3 मेजॉरिटी होती तो फ़ौरन कर लिया जाता। हाँ, पिछले अदवार में मुस्लिम लीग नून के पास एक वक्त आया था कि उनके पास 2/3 मेजॉरिटी थी, आपके सामने है। उस 2/3 मेजॉरिटी का सहारा लेते हुए वो कर सकते थे, लेकिन उन्होंने बवजू ना किया। आज पार्लियामेंट में किसी एक जमात के पास 2/3 अक्सरियत नहीं है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत बारहा कहती रही है कि हम जनूबी पंजाब सूबे को अमली शक्ल देना चाहते हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा इस बारे में एक मौक़िफ़ रखती थी और वो उनकी एक पोजीशन थी। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी इस पर बात की है। तो मैं तवक्को करता हूँ कि जब तहरीक इंसाफ ये बिल मूव करेगी तो उस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले अपने माजी को सामने रखते हुए हिमायत फरमाएंगे और अपनी आवाज़ तहरीक इंसाफ की और उसके हलीफों की आवाज़ के साथ वो अपनी आवाज़ मिलाएंगे। इसी तरह मुस्लिम लीग नून ने भी जनूबी पंजाब को शहबाज शरीफ साहब ने माजी में कहा कि उसको उसका हक मिलना चाहिए। मैं तवक्को करता हूँ मुस्लिम लीग नून के जो मेंबरान कौमी असम्बली हैं या सेनेट हैं या दीगर पंजाब में मेंबरान हैं, वो भी अपनी क़यादत को कायल करेंगे कि ये इलाका जो महरूमियों में जकड़ा हुआ इलाका है उसकी आवाज़ बनेंगे और इस तहरीक को आगे बढ़ाने में एक मुस्बत किरदार अदा करेंगे। साहब ये बताएं कि नून लीग के कुछ अरकान जो पंजाब असेंबली में हैं वो पीटीआई से राब्ते कर रहे हैं, तो क्या जनूबी पंजाब सूबे के भी कुछ ऐसे लोग हैं खासतौर पर इस आईनी तरमीम के लिए जो आपसे राब्ते में हो या आप उनसे राब्ता करना चाहें? देखिए, अभी तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने उस अपने मंशूर के वादे को एक रोड मैप आपके सामने रखा है, एक रोड मैप दिया है। जिस रोड मैप पर अमल पैरा होकर हम इसको एक हतमी शक्ल देंगे। हमारी उनसे हमारी ख्वाहिश भी है और हमारी कोशिश भी होगी कि उन्हें भी हम नवा बनाएं। अच्छा, शाह साहब एक फॉरेन अफेयर के मिनिस्टर हैं, तो इस पर एक सवाल करते हैं, क्या बरतानिया ने नवाज शरीफ को मुल्क छोड़ने का कह दिया है? यार आज खुदा के लिए आप जरा आज हमारा फोकस दिस इज सहाफ़ियों के सवाल लेना प्लीज। सर सुनिए, ये बताएं, आपने बहावलपुर की बात की कि आधा सेक्रेटरीट बहावलपुर में होगा, आधा मुल्तान में होगा। इन फ्यूचर हम क्या देखते हैं कि जो जनूबी पंजाब सूबे का जो दारुल खिलाफा है वो जुम्मा शहर बनाया जाएगा या दो नहीं, सूबे बनाएंगे? देखिए एक सेकंड, मैं इसकी जवाब जी मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਕਾਫ ਆਪਣੇ ਕਾਫਜ਼ਾत रखे थे कि 2 सूबे बनने चाहिए। मुस्लिम लीग काफ ने तो सब काफजात दूर किए। गुजारिश ये है, देखिए हर जमात को उनको अपनी राय का हक है। हमारे भाई हैं, हमें उनको पता है कि ये हमारे मंशूर का हिस्सा था, ठीक है, या तो हमने आज बात की होती। ये हमारे मंशूर में दर्ज था। हमारे मंशूर को सामने रखते हुए उन्होंने जब हमारे साथ मेहरबानी फरमाई, ताउन फरमाया, तो उनके इल्म में था कि ये वज़ीर आज़म इमरान खान का अवाम से वादा है और तहरीक इंसाफ के मंशूर का हिस्सा है। तो मैं तवक्को करता हूँ कि वो गुंजाइश पैदा करेंगे। इंशाल्लाह हम भी उनकी खिदमत में हाजिर होंगे और इंशाल्लाह साउथ पंजाब को वो अमली शक्ल देने में मदद फरमाएंगे। देखिए जो दारुल खिलाफा हतमी कहाँ बनता है, ऑब्वियसली उसका फ़ैसला जो मुंतखब असेंबली होगी वो फ़ैसला उसका करेगी। हम चाहते हैं कि इस पर आवाम की राय और लोगों की राय, जो मुंतखब नुमाइंदगान हैं, उनकी राय को अहमियत दी जाए। मैं आज जनूबी पंजाब की आवाम को मुबारकबाद देना चाहता हाँ कि जिहड़ी अरसा दराज तो उन्हां दी ख्वाहिश आई, जिहड़ी उन्हां दी तहरीक आई, जिहदे विच बहु लोगां कुर्बानी दित्ती और अज वो एक अमली शक्ल अख्तियार करेंदी पई है, एक वड्डा कदम खिदा गया है।
میں انہوں کو مبارکباد دینا اور انشاءاللہ میں کو امید ہے کہ یہ جڑے صوبہ ایک شکل اختیار کرے سی تو جنوبی پنجاب دے کافی سارے مسائل حل تھی سن. شکریہ.